I welcome every one of you in the name of Jesus Christ of Nazareth to listen His unchanging Word of God. मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं कि परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन को आप सुने। Beloved brothers and sisters, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 years ago, 2000 साल पहले when the Lord Jesus Christ came from heaven and finished all the work which is required to be done, then He ascended to heaven. जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और जो कुछ भी काम करना था उस काम को पूरा करके जब वो प्रभु यीशु मसीह फिर से स्वर्ग में चले गए, He completed all the work supposed to be done. He finished it. जो कुछ भी काम उसे पूरा करना था उस काम को उसने पूरा कर दिया And He has redeemed all the people of the world. और उसने संसार के सभी लोगों को छुटकारा दिया। He has forgiven the sin of the people. उसने लोगों के पापों को क्षमा किया है। He has taken away every curse from the life of the people. उसने लोगों के जीवन से हर एक श्राप को उठा लिया है And He has blessed all the people with the Abraham's blessing. और अब्राहम की आशीष से उसने सभी लोगों को आशीष दी है। He has abolished death and brought life and immortality to light. उसने मृत्यु को नाश किया और मनुष्य के जीवन में अमरता और जीवन लेकर आए। And He has redeemed all, delivered the people from the power of darkness. और उसने लोगों को सभी लोगों को अंधकार की सामर्थ से छुटकारा दिया। And He has also qualified all the people to go to heaven. और उसने सभी मनुष्यों को इस योग्य बनाया कि वो स्वर्ग में जा सके। He finished everything. उसने सब काम पूरा किया। He has made the people free उसने लोगों को स्वतंत्र कर दिया by giving His own life. अपना जीवन देने के द्वारा, He giving His own flesh. अपना शरीर देने के द्वारा। He gave His blood. उसने अपना लहू दे दिया, Completed. पूरा काम किया। Beloved, प्रिय लोगों, Bible says, बाइबल कहती है, we will read one word. Colossians chapter 1 verse 12 and 13. हम यहाँ पर वचन पढ़ेंगे कुलुसियो अध्याय 1 वचन 12 और 13। We'll listen what the word says. सुनिए वचन क्या कहता है। गिविंग थैंक्स टू द फादर Giving thanks to the Father who has qualified us to be to be. partakers of the inheritance of the saints in the light. He has qualified us to partake of the saints in heaven. He has delivered us from the power of darkness Delivered us from the power of darkness. and conveyed us into the kingdom of Son of His love. Convert into the kingdom of His Son. यहाँ पर कुलुसियो अध्याय 1 वचन 12 और 13 कहता है, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, यानी अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। Beloved brother, मेरे प्यारे भाई, my sister, मेरी बहन, this is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। What is He saying? ये क्या कह रहा है? Giving thanks to the Father. पिता का धन्यवाद करते रहो। Giving thanks to the God the Father, the Lord God Almighty. सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, ये कहता है। He has already qualified us to inherit kingdom, inherit the heaven, go to heaven where the saints are there. उसने हमें योग्य बनाया है कि हम स्वर्ग में जा सके जहाँ पर संत रहते हैं। हमें उसने योग्य बनाया है कि हम वहाँ पर जा सके। He has qualified us to go to heaven. उसने हमें स्वर्ग में जाने के योग्य बनाया है। You are qualified to go to heaven. आप स्वर्ग में जाने के योग्य बनाए गए हैं। All the people of the world. पूरे संसार के लोग, Not a single person on this earth is not qualified to go to heaven. इस पृथ्वी का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि स्वर्ग में जाने के योग्य ना हो। वो तो स्वर्ग में जाने के योग्य हैं। It is already qualified you.
उसने आपको पहले से ही योग्य बना दिया है। Number 2, He already delivered you from the power of darkness. नंबर 2, उसने आपको अंधकार की सामर्थ से छुटकारा दिया है। He already delivered you from the authority of the devil. उसने शत्रु के अधिकार से आपको छुटकारा दिया He है। already पहले से ही delivered you. आपको छुटकारा दिया है। And then He has फिर- delivered and transferred you into the kingdom of His Son Jesus Christ. उसने आपको छुड़ाया है और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आपका प्रवेश कराया है। Where are you now? अभी आप कहाँ Where पर हैं? are the people today? आज लोग कहाँ पर They हैं? are all in the kingdom of His Son Jesus Christ. वो सब उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं। Who did it? किसने ये किया? God did it. परमेश्वर ने इसे किया। How He did it? उसने इसे कैसे किया? Personally came here as a man and sacrificed on the cross, shed the blood, gave His body, everything He did. And that's how He qualified you to go to heaven. वो व्यक्तिगत रूप में एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आए, अपना लहू बहाया, बलिदान दिया, जो कुछ करना था सब काम किया और उसने आपको इस योग्य बनाया कि आप स्वर्ग में जा सके, उसके अनंत जीवन में happening in प्रवेश the कर world? सके। ऐसे उसने योग्य बनाया। People are trying to be qualified to go to heaven. लोग तो स्वर्ग में जाने के लिए योग्य बनने की कोशिश कर रहे हैं। They are doing so many things to go to heaven. वो स्वर्ग में जाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। It won't work. वो काम नहीं करेगा। Why? क्यों? They are not believing God. वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे What हैं। God has done. परमेश्वर ने ये किया है। God already qualified you परमेश्वर ने आपको योग्य बनाया है to go to heaven. कि आप स्वर्ग में जा सके। There is no need that you have to be qualified again. अभी आपको फिर से योग्य बनने की कोई जरूरत नहीं। You have to only believe what God says. परमेश्वर ने जो कहा उस पर विश्वास करना You have है to only receive what God has done. और परमेश्वर ने जो किया है उसे स्वीकार करना है। And He has already delivered you from the power of और darkness. उसने आपको अंधकार की सामर्थ से पहले ही छुड़ा दिया है। But people are not aware. लेकिन लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। They don't know they are already delivered. वो ये नहीं जानते हैं कि वो पहले ही छुटकारा पा चुके हैं। Devil is a liar. शैतान झूठा है। Devil is a liar. शैतान झूठा है। He always tell वो lie. हमेशा झूठ ही कहता He है। will tell the people, वो लोगों से कहता है you have to be delivered. तुम्हें छुटकारा पाना होगा, So you should have a deliverance meeting. इसीलिए तुम छुटकारे की सभा करो। From where? कहाँ से? Where you need deliverance, my beloved brother and sister? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको कहाँ से छुटकारा चाहिए? God already delivered you. परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया When है। God has delivered you, from where you need deliverance now? परमेश्वर ने आपको पहले से ही छुटकारा दे दिया है, तो अभी आपको किससे छुटकारा चाहिए? Not only He delivered you, उसने केवल आपको छुटकारा ही नहीं दिया, He has transferred you into the kingdom of His Son, of His love. उसने अपने प्रिय पुत्र के राज्य में आपका प्रवेश कराया है, उसके राज्य में आपको ला लिया है। Now, legally, you are in the kingdom of His Son, Jesus Christ. अब नैतिक रूप में आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हैं। That means everything Jesus finished this work, इसका मतलब यीशु मसीह ने अपना सारा काम पूरा किया। we should know, हमें जानना होगा but only thank God. और केवल परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Only thank God. केवल परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Receive and thank God. बस इसे स्वीकार करके उसे धन्यवाद देना है। People are not in a position to understand this. लोग इस दशा में नहीं हैं कि इस बात को समझ सके। That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, I am going, मैं जा रहा हूँ, but I will not leave you orphan. लेकिन मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Very attentively here. बड़े ध्यान से सुनिए, I will come to you. मैं तुम्हारे पास आऊंगा। He came. वो आए। How He came? वो कैसे आए? By His Spirit. अपनी आत्मा के द्वारा आए। That means Holy Spirit. मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा। Who is this Holy Spirit? ये पवित्र आत्मा कौन है? He is Jesus Christ Himself. वो तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। 2 Corinthians 3:17. दूसरा कुरिन्थियों 3:17। The Lord is the Spirit. The Lord is the Spirit, The Lord is the Spirit. and where the Spirit of the Lord is, Where the Spirit of the Lord is,
there is liberty. There is liberty. देखिए यहाँ पर ये वचन कहता है प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। Now the question. अब सवाल ये है, Jesus said, यीशु ने I कहा will come to you. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Whether he has come? क्या वो आ गए? Yes. हाँ। Who is this Lord? ये प्रभु कौन है? Spirit. ये आत्मा है। If the Spirit of God is there with you, अगर परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है Jesus is with you. तो यीशु आपके साथ है। If the Lord Jesus is with you, अगर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं and you have freedom. तो आप स्वतंत्र हैं। Where the Lord is, there the Spirit is, there is liberty. जहाँ प्रभु है, जहाँ उसका आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। Jesus promised, I am with you always. उसने प्रतिज्ञा की है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। That's before going to heaven. ये तो स्वर्ग में जाने के पहले उसने कहा था। Jesus' voice, Jesus said like this. यीशु ने इस तरह से कहा था। Luke chapter 24:49. लू का अध्याय 24 वचन 49 में He's told. उसने कहा, He said, Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry into the city of Jerusalem until you are endued with the power from on high. देखिए ये वचन कहता है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में यानी यरूशलेम में ठहरे रहो। Jesus said, यीशु ने कहा, Behold, देखो I am going to heaven. मैं स्वर्ग में जा रहा I हूँ, am going to my Father. मैं अपने पिता के पास जाता हूँ। I will send the promise of my Father. मैं अपने पिता की प्रतिज्ञा को भेजूंगा, That is a power from on high. और ये तो ऊपर से सामर्थ है। Till he comes, उसके आने तक wait here. तुम यहीं पर ठहरे रहो। The voice very nicely here, carefully here. Jesus said, यीशु ने कहा, wait here till the power from on high come to you. That is a promise of my Father. यीशु ने यहाँ पर कहा कि जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम यहीं ठहरे रहो। यानी जब तक तुम ऊपर से स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम यहीं पर रुके रहो। Number one. नंबर 1। Next he said, और फिर अगली बात उसने John कही, chapter 16 verse 7. यूहन्ना अध्याय 16 वचन 7 में। Attend to the voice. इस बात की ओर ध्यान से सुनिए। What he said, Jesus. Nevertheless, I tell you the truth. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage It is your advantage that I go away. I go away. For if I do not go away, If I do not go away, the Helper will not come to you. helper will not come to you. But if I depart, If I depart, I will send him to you. I will send him to you. Send him to you. तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वो सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। यदि मैं जाऊँ तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, ऐसे यीशु ने कहा। मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा कहाँ? You see, listen. गौर से सुनिए What Jesus said. यीशु ने क्या कहा। I will not leave you orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I'll come to you. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। What you do? तुम्हें क्या करना है? Wait here यहाँ पर ठहरे रहो till the promise of my Father come upon you. जब तक कि मेरे पिता की प्रतिज्ञा तुम्हारे ऊपर नहीं आ जाती है, The power from on high come upon you. ऊपर से तुम पर सामर्थ न आ जाए तब तक। I'm going, it is for your advantage. मैं तो तुम्हारे लाभ के लिए जाता हूँ। If I go, अगर मैं जाऊंगा I will send the promise. तो मैं उस प्रतिज्ञा को भेजूंगा। I will send the Spirit of truth to you. मैं उस सत्य की आत्मा को तुम्हारे पास भेजूंगा। I will send him to you. मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। When he comes, और जब वो आएगा he will convict the world of sin. वो संसार को पाप के बारे में कायल करेगा। He will convict the world of their righteousness. वो संसार को धार्मिकता के लिए कायल करेगा। He will convict the world of judgment. वो संसार को न्याय के बारे में कायल करेगा। My beloved, मेरे प्रिय लोगों, listen very attentively this voice of God. परमेश्वर की इस आवाज को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। Then Jesus said, और फिर यीशु ने कहा, when the Holy Spirit come upon you, you shall receive power. जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ पाओगे। Acts chapter 1:8. प्रेरितों के काम 1:8। You shall receive power. तुम सामर्थ पाओगे।
the Holy Spirit come upon you. पवित्र आत्मा जब तुम पर उतर आएगा। Are you hearing? You shall receive power. क्या आप सुन रहे हैं? तुम सामर्थ पाओगे। I am not leaving you orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I will come to you. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। And see the voice, what it says, Holy Spirit will come. और फिर कहते हैं कि पवित्र आत्मा आएगा, वो तुम पर उतर आएगा। When he come, और जब वो you आएगा will receive तब तुम power. सामर्थ पाओगे। Power from on high. ऊपर से सामर्थ पाओगे। It is your advantage. ये तो तुम्हारे लाभ के लिए है। It is your advantage. ये तुम्हारे लाभ के लिए है। If I don't go, he will not come. अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वो नहीं आएगा। John chapter 14:16. यूहन्ना 14:16 इसे हम देखते हैं। We will read this word from Amplified version. हम इसे एम्पलीफाइड बाइबल में से एम्पलीफाइड वर्जन से पढ़ेंगे। It is a very good word. ये तो सच में बहुत ही अच्छा वचन है। John chapter 14:16. यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 14 वचन 16। And I will ask the Father, I will ask the Father. and He will give you another Comforter. You see, listen very carefully, my beloved brother and sister, what Jesus is saying. भाइयों और बहनों, बड़े गौर से सुनिए कि यीशु यहाँ पर क्या कह रहे हैं। इसे गौर से सुनिए। Jesus said, यीशु ने कहा, I'll go to my Father. मैं अपने पिता के पास जाता हूँ I will ask the Father. और मैं पिता से विनती करूंगा, He will give you तो वो तुम्हें देगा अनदर कंफर्टर, another comforter, काउंसलर, counselor, हेल्पर, helper, इंटरसेसर, intercessor, एडवोकेट, advocate, स्ट्रेंथनर strengthener, एंड स्टैंड बाय, stand by. दैट ही मे रिमेन विथ यू फॉर एवर। He may remain with you forever. गौर से सुनिए, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यानी मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक, वकील, मध्यस्थ और हमेशा साथ में रहने वाला और तुम्हें बल देने वाला पवित्र आत्मा तुम्हें देगा, तुम पर भेजेगा। Have you heard of it? क्या आपने उसके बारे में सुना है? I will not leave you orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। I am going, मैं जा रहा हूँ, but I will send another person. लेकिन मैं एक और व्यक्ति को भेजूंगा। He will come and stay with you forever. वो आकर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में रहेगा। He will abide with you forever. वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ में रहेगा। Who is he? वो कौन है? A helper, वो एक सहायक है, a comforter, वो तसल्ली देने वाला है, a counselor, वो सलाहकार है, a standby, वो स्टैंड बाय है, an advocate, एक वकील है, वो आपका वकील है, and an intercessor, और वो तो मध्यस्थ है, strengthener. वो बल देने वाला है, He is with you. वो आपके साथ He है, will be with you. वो आपके साथ रहेगा। Do you know? क्या आप जानते हैं? When you believe Jesus Christ, जब आप यीशु पर विश्वास करेंगे, when you receive Jesus Christ, जब आप यीशु को स्वीकार करेंगे, when you accept this word of God, जब इस वचन को स्वीकार करेंगे, believe the word, वचन पर विश्वास करेंगे, believe that Jesus यीशु मसीह Christ, पर विश्वास करेंगे, you are not orphan. तो आप अनाथ नहीं हैं। You are not orphan. आप अनाथ नहीं हैं। You are not a helpless man. आप असहाय मनुष्य नहीं हैं। You are not some orphan lying in the streets. आप सड़क पर पड़े हुए कोई अनाथ नहीं हैं। Jesus said, I will come. यीशु ने कहा, मैं आऊंगा। He came वो आए in a spirit form. आत्मा के रूप में। Body is not there. शरीर वहां पर नहीं है। Without body, Jesus came. बिना शरीर के यीशु आए। Spirit. वो आत्मा है। We call Holy हम Spirit. उसे पवित्र आत्मा कहते हैं। This person is with us. ये व्यक्ति हमारे साथ में है। He is with us वो हमारे साथ है। 24 hours of the day. दिन के 24 घंटे वो हमारे साथ हैं। Who is there with you? आपके साथ में कौन है? Who is he? वो कौन है? He is your वो helper. आपका सहायक है। Who is he? वो कौन है? He is your वो comforter. आपका तसल्ली देने वाला है। Who is he? वो कौन है? He is your counselor. वो आपका सलाहकार है। Who is वो he? कौन है? He is an advocate. वो तो आपका वकील है। Who is he? वो कौन है? He is an intercessor, who is the one who pray for वो you. तो मध्यस्थ है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है। He is a strengthener. वो बल देने वाला है, Stand by. स्टैंड बाय है। How many people know it? कितने लोग ये जानते हैं? Do you know? क्या आप ये जानते हैं? This person is around you. ये व्यक्ति आपके आसपास है, Around you. आपके आसपास है। How many people know? कितने लोग ये जानते हैं?
John chapter 14 verse 17 says, यूहन्ना अध्याय 14 वचन 17 इस तरह से कहता है, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive, the Spirit of truth. सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, The world cannot receive जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, because क्योंकि they do not know him. वो उसे नहीं जानते हैं। We'll read the verse 17. वचन 17 पढ़ते हैं, द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ whom the world cannot receive, Hmm? because it neither sees him nor knows him, Hmm. but you know him, You know him. for he dwells with you He dwells with you, and will be in you। will be in you. अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, what Jesus said? यीशु ने क्या कहा? I will not leave you orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। Moment you believe the Lord Jesus Christ, जिस पल आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसे अंगीकार करते हैं, when you received the Lord Jesus Christ, जब आप प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, you are not orphan. तो आप अनाथ नहीं रहते हैं। There is a person with you, आपके साथ एक व्यक्ति रहता है, very powerful person. जो कि बहुत ही सामर्थी व्यक्ति है। Jesus has handed over you into another person. यीशु ने आपको दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंपा है। He handed you into another helper, उसने आपको एक और सहायक के हाथों में सौंपा है। the Spirit of truth. वो तो सत्य का आत्मा है। What is that? ये क्या है? Well, how much description it is? इसका कितना विवरण है? Person is with you. ये व्यक्ति आपके साथ में है। That person वो व्यक्ति, is a helper, वो सहायक है, one who help you. जो आपकी मदद करता है। Who is this person? ये व्यक्ति कौन है? He is your comforter. वो आपको तसल्ली देने वाला है। Comfort you anytime, every time. हर समय, किसी भी समय वो आपको तसल्ली देता है या आपको तसल्ली दे सकता A है। counselor, वो सलाहकार है for all the time to give you guidance, to give counseling. कि हर समय आपको सलाह देते चले जाए, आपका मार्गदर्शन करते चले जाए। वो आपका सलाहकार है। Some people don't know what to do. कुछ लोग नहीं जानते हैं कि क्या करें। Some problem comes, जब भी कुछ समस्या आती है that what to do now. कि अब हमें क्या करना चाहिए, He need a right counselor. उन्हें सही सलाहकार चाहिए। He is there with you. वो आपके साथ है। He is called counselor. उसे सलाहकार कहा गया है। Wonderful counselor. वो तो अद्भुत सलाहकार है। He is there with वो you. आपके साथ है। You are not आप orphan. अनाथ नहीं हैं। There is no need to go and ask somebody. आपको जाकर किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। There is no need to go to ask the sorcerers people, tell me what is going to happen. आपको जाकर भविष्य बताने वालों से पूछने की जरूरत नहीं कि बताइए कि क्या होने वाला है, मेरे भविष्य में क्या होगा, ये मुझे बताइए। What happened? What should I do? या फिर मुझे क्या करना, ये पूछने की जरूरत नहीं। There is a counselor is always there with you. देखिए, ये सलाहकार तो हमेशा आपके साथ में है And there is a standby all the time. और हमेशा ये स्टैंड बाय आपके साथ What is है। the standby स्टैंड means? बाय का क्या अर्थ है? When the enemy comes, जब शत्रु आता है, you don't know what to do. आपको पता नहीं कि क्या करना है, You don't even know about it. आप उसके बारे में जानते भी नहीं हैं, This Holy तो Spirit, ये पवित्र आत्मा He will take action. तो ये काम करेगा। It's a standby. वो स्टैंड बाय है An advocate, और वकील है। He will do only वो तो justice. केवल न्याय करेगा, He will fight for the justice. वो न्याय के लिए लड़ेगा। That advocate is always there. ये वकील तो हमेशा वहां पर है। And there is a strengthener. और फिर बल देने वाला है। That strengthener means ये बल देने वाले का all the मतलब, time you are depressed, जब भी आप निराश होते हैं, weak, आप कमजोर don't होते know हैं, what to do. आपको पता नहीं चलता कि क्या करना है, The Holy Spirit, the strengthener will come and strengthen तो you. पवित्र आत्मा जो बल देने वाला है वो आकर आपको बल देगा। Such a great person is with you, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, ऐसा महान व्यक्ति आपके साथ में है। Always there. हमेशा वो वहां पर है, 24 hours of the day. 24 घंटे आपके साथ The है world doesn't know him. और संसार इसे नहीं जानता है। They cannot receive him. वो उसे प्राप्त नहीं कर But सकते, you know. लेकिन आप जानते हैं, You know him. आप उसे जानते हैं। He is with you. वो आपके साथ है, Will be in you. वो आप में होगा, You need him. आपको उसकी जरूरत है।
You must know him. आपको उसे जानना ही होगा। Bible says, बाइबल कहती है the love of God, परमेश्वर का प्रेम, the grace of Jesus प्रभु Christ, यीशु मसीह का अनुग्रह and the fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की संगति is with you. वो आपके साथ है। Is there with you, वो man. आपके साथ है अभी इस समय। I will try to continue this a little more. और इस संदेश को मैं आगे भी बताऊंगा। The one who is with you, जो आपके साथ में है the Spirit of truth, वो सत्य का आत्मा है, the Holy Spirit. पवित्र आत्मा है। Just thank him. बस उसे धन्यवाद दे। Pray. प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I want to thank you and praise you मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति for करता हूँ all these dear children. इन सभी प्रिय संतानों के लिए। You have not left them orphan. आपने इन्हें अनाथ नहीं छोड़ा है। You have given them a great helper, आपने इन्हें महान सहायक दिया the है, Spirit of truth, जो कि सत्य का आत्मा है, to be with them always. कि इनके साथ में वो हमेशा हमेशा के लिए रहे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Let your children know about him. आपकी संतान उसके बारे में जानने पाए। I will give you glory, हम Father. आपको महिमा देते हैं पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन।